خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب خداوند اپنے خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں جو نہایت مہربان اور شفیق ہے۔ ہم سب انسان ہوتے ہوئے گنہگار ہیں، جانے انجانے میں اکثر گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں، ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور اس سے معافی طلب کریں گے اور سب مل کر پڑھیں گے، توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تجھے نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے ساتھ گناہوں سے نفرت کرتا ہوں جو تو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، مجھے ساتھ پیار کے لائق ہے اور مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک ملک سے رحمت نراز نہ کروں گا بلکہ گناہوں سے کنارہ کروں گا۔ قدوس اور مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے، خاص کر اس وقت اور گھڑی کے لیے جو تو نے اب ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ اے مہربان پیارے خداوند، ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، اس قابل نہیں کہ تیرے حضور میں آ سکیں، لیکن یہ تیرا پیار، تیری محبت جو ہمیں بار بار تیرے حضور، تیرے قدموں میں کھینچ لاتی ہے۔ اے مہربان باپ، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، تیرے روبرو اپنے آپ کو اندھیرائے میرے باپ، جتنی جان تیرے حضور میں جھکی ہوئی ہیں، ایک ایک کو چھوڑا تیرے خداوند اور ایک ایک کو برکت دے، تاکہ مہربان تیرے خداوند ہم اسی طرح تیرے ساتھ پیوست رہیں اور تیرے قدموں میں آتے رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ آج کی ساری عبادت تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں میرے خداوند، ہم سب کو چھو، گانے والوں کو، بجانے والوں کو، سب کے ساتھ ہو، سب کو بلیس کرے میرے خداوند، تاکہ ہم جو کچھ کریں وہ تیری خوشنودی کے لیے ہو، تیری عزت اور جلال کے لیے ہو، اور جو کریں وہ دل اور روح سے کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کی مدح سرائی کرتے ہوئے زبور 32 گائیں گے۔ او در جس نے بخشے گئے سب گناہ۔
दोस्तों, जब हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर में दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से आते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है। हमारी जितनी गलतियाँ और खताएँ होती हैं उन्हें मुआफ़ कर देता है। लेकिन ये ज़रूरत है कि हम जब उसके सामने झुकें तो बड़े ईमान के साथ और बड़ी अकीदत के साथ उसके हजूर में आए, तो वो ज़रूर हमारी अर्ज़ और मिन्नतों को सुनता और पूरा करता है। खुदावंद की परस्तश में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 128। हमें दावत देता है कि हम खुदावंद अपने खुदा की मदसराई करें, उसकी तारीफ में गाएं और बचाएं और दिल से उसे पुकारें ताकि
اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ اس کے مقبول نظر ٹھہر سکیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا پہ آئے، کھائے پیے اور مر جائے، بلکہ اس نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا اور اس میں اپنی روح کو پھونکا اور انسان کو اپنی مدح سرائی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، جبکہ ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ میں درخواست کروں گا مسز ایرک سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ مائک پرستش میں باقی رہیں گے اور گیت گائیں گے، تیری پرستش صبح و شام ہے۔
میں زندگی تیرے نام کروں۔ میرے عزیزوں، جب ہم روح اور سچائی سے اور دل کی گہرائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے، اس کا تب یہاں پہ لگ چکا ہے، کیونکہ ہم سب بڑے ایمان کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں، ہم سب اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور جب ہم دل سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے۔ ہم ضرور گیت گائیں گے، یسوع اترا ہے یہاں، ہم گائیں گے۔ گیت نمبر 281۔ Oh,
देगा। जो बोझ से तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। मेरे अजीजों, यकीन रखें, ईमान के साथ उसके साथ जुड़े रहें और ईमान से उसे पुकारें तो वो जो शिफा का मंबा है, जिससे शिफा जारी होती है, वो आज भी बाएं बाएं खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ। वो आज भी हमें शिफा देना चाहता है, वो रूहानी तौर पर भी शिफा देना चाहता है और हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफा देना चाहता है। आए हम अपनी ईमान में मजबूत रहें और उसे दिल से पुकारें ताकि आज कोई भी यहाँ से खाली हाथ न लौटे बल्कि उसकी शिफा लेके जाए। अभी मैं सोबिया को दावत दूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए हम सब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और गीत नंबर 13 गाएंगे छोटी बुक में, बेजरू का मसा, बेजरू का मसा। हाथों को बुलंद करें।
जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का तशरीफ रखें। अब वक्त है कलाम का। मैं दावत दूंगा मोस्ट सीनियर मास्टर यूसुफ वो आएँ और हमारे साथ कलाम पेश करें। आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली 18 आयत। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और तवज्जो करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पारथी और मादी और इलामी और माबीन अल नहरी और यहूदिया और कपादोकिया और पैंतस और आसिया और फेरोचिया और रंगोलिया और मिस्र और लोबिया में करवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी, क्या नोमरी, क्या करीदी और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और तवज्जो करके एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और उन्हें ठट्ठे से कहा कि ये नई मै के नशे में है। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनसे कहा, ऐ यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, इसलिए कि अभी तो दिन की तीसरी ही घड़ी है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह से हर बशर पर अंधेरूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे और तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। शुक्र। आए हम अभी मास्टर जी से खुदा के कलाम से बातें सुने। मेरी तरफ से आप सबको, बड़ों को, बच्चों को, बेटियों को, माओं को सलाम करता हूँ। सलाम की आवाज़ नहीं आई जैसे मेरे से गुस्से होती है। सलाम जब सब। तो आज की पाक सलामत में ईद पेंतीकोस्त के बारे में सुना है। ईद खमसीन भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? बोलने को
आज आपका पूरा पेंटिकोस्ट के बारे में ईद खमसीन, ईद खमसीन किसको कह रहा किसी को पता है? ये यहूदियों में ईद मनाई जाती है। ईद खमसीन, ईद खमसीन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले ये यहूदियों में ना फसली ईद थी, जैसे हमारे आजकल फसल की ईद है, फसल काटने के आजकल कटाई होती है गंदम की। उस वक्त भी इसराइल में ये था, वो जब गंदम की कटाई होती है ना तो वो फिर फसलें वगैरह, जैसे हम चंदा कहते हैं, एक दिन मुकर्रर किया जाता है आज भी गाँव में, तो वो जो हदिया लोग देना चाहते हैं, कोई दही देना चाहते हैं, तो वो उस वक्त हैकल में लाया करते थे, इसलिए उसे ईद खमसीन कहा गया है। तो ये यहूदियों में बहुत बड़ी ईद मनाई जाती थी। तो वो हर एक अपने अपने हदिये लेकर आए हुए हैं, तो वहाँ यरूशलेम में आए ईद मनाने के लिए। दूसरा लफ्ज पड़ा है पेंतीकोस्त का दिन, इसका मतलब है 50वां दिन। यीशु मसीह कितने दिनों का मुर्दों से जी उठा था? कितने दिनों के बाद? तो कितने दिनों पर आसमान पर यीशु मसीह उठाया गया जी उठने के बाद? शाबाश, ऊंची बोले। 40 दिन के बाद यीशु मसीह आसमान उठाया गया। तो रूह कुदस कितने दिन के बाद फिर नाज़िल हुआ रसूलों पर? 10 दिन के बाद। ये 40 और 10 जो है फिर 50 बनते हैं। पेंतीकोस्त का मतलब है 50वां दिन। पेंतीकोस्त का क्या मतलब है? 50वां दिन। तो रसूल कहाँ बैठे हुए थे? बाला खाना में। कहाँ बैठे हुए थे? बाला खाना में बैठे हुए थे। कितनों की जमात थी? 120। और शाबाश, बहुत अच्छा। कितने की जमात है? 120 लोगों की, जिन्हें 12 शागिर्द हैं, कुछ खवातीन भी हैं जो यीशु के साथ साथ रहती थी, कुछ मर्दी हजरात हैं। 120 की जमात है। तो रूह कुदस उन पर बाला खाना में नाज़िल हुआ। कहाँ पर रूह कुदस नाज़िल हुआ? बाला खाना में। किस सूरत में? आग और तुंद हवा की सूरत में। आग और जब आग आसमान से आग नाज़िल होती है तो खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के पाक रूह ने उनकी जिंदगियों को बदल डाला। वो पहले जैसे रसूल नहीं रह गए, वो इनकार करने वाले भगौड़े किस्म के थे, यीशु को छोड़कर सब भाग गए, लेकिन रूह कुदस ने उनकी जिंदगियों को बदल डाला है। अब वो बड़े यकीन के साथ, ईमान के साथ वो जाकर पहले बालाखाना में बैठे हुए हैं, फिर नीचे आगे हैं। तो यहूदी लोग जो है मुख्तलिफ शहरों से हैं, कप्पादोकिया से, पैम्फिलिया से, फ्रूजिया से, माबाइनुल नहरीन से। ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैं माबाइनुल नहरीन किसको कहते हैं? माबाइनुल नहरीन आपने कभी दुआबा देखा है? ये मेसोपोटामिया जो बाबल का इलाका है ना, ये दो नहरों के दरमियान जो होता है, माबाइनुल नहरीन, दो नहरों के दरमियान जो इलाका होता है, बाबल जो था वो दो पानियों के दरमियान, दो दरियाओं के दरमियान ये जगह थी। वहाँ के रहने वाले पंफोलिया, लोबिया, मिस्र और भी तकरीबन बहुत से, ये 16 मुल्कों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो ईद मनाने के लिए आए हुए, ईद खमसीन मनाने के लिए। तो वो वहाँ जब उन्होंने शोर सुनाने पर क्या हो रहा है, उन्होंने हैकल को छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ आगे हैं? गली में। वहाँ वो हैकल में नहीं है, बात करते हैं कि हैकल में थे। वो बालाखाना से उतरकर नीचे आ गए हैं, गली में, बाजार में आ गए हैं। तो वहाँ रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ है। ये 16 मुल्कों के लोग आए हुए हैं। जब रसूल बोल रहे हैं तो वो अपनी जुबान बोल रहे हैं। रसूलों की कौन सी जुबान है? रसूलों की आरामी जुबान है। यीशु मसीह भी आरामी जुबान बोलता था, मुकद्दसा मरीम भी आरामी जुबान बोलती है। ये उनकी मालवी जुबान है। इसराइल के लोग भी यही बोलते थे। फिर बाद में इसके तर्जमे हुए हैं
यूनानी ज़बान में, तो पेंटिकोस्ट जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो वो सब अपनी अपनी हर एक अपनी अपनी ज़बान में बोल रहे हैं। तो जो रसूल हैं जो वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं। तो मौजज़ा इस बात में है कि लोगों को हर एक को, अगर कोई अरबी है तो अरबी में उसको समझ आ रही है, अगर मेसोपोटामिया का है तो उसको अपनी ज़बान में, अगर कोई फारसी है ईरान का या बाबल का रहने वाला तो उनको फारसी में समझ आ रही है। हर एक अपने अपने वतन की बोली सुन रहा है। ये है मौजज़ा। तो आजकल जो ज़बान बोलते हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, ना उनसे बड़ी दफ़ा पूछते हैं कि आपने जो ज़बान बोली उसकी समझ भी कोई आई है, ना उनको अपनी समझ होती है ना दूसरों को समझ आती है। एक दिन हमारे घर में एक बहन आई, वो गैर ज़बान में दुआ कर रही थी। मुझे अभी वो लफ्ज़ याद नहीं जो वो बोल रही थी, मुझे याद थे, लेकिन मैंने उसका तर्जुमा उसको बताया कि जो बोल रही थी, मैं उसका तर्जुमा उसको बताया कि खुदावंद की जो सदाकत है वो बेहिसाब है। खुदावंद की सदाकत का कोई अंदाजा नहीं है। नबूवत मिली है, मैं नबूवत मिली है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि खुदा का पाक जो हमें गाइड करता है उसका मतलब समझाता है। तो ये है, रसूलों को भी समझ आ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी समझ आ रही है कि वो अपनी अपनी ज़बान में अपनी अपनी बोली में खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आज बिल्कुल इसके उल्ट हो गया है। तो सब जो जोर है वो बपतिस्मे में भी देते हैं। तो बपतिस्मे का टॉपिक नहीं है, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन उन सब की जिंदगियों को जो इनकार करने वाला था यीशु मसीह का, जो भगौड़ापन पाया जाता था, वो सब वो भी जिंदगी उनकी बदल गई है रूह कुदस के वसीले से। आप दलेरी के साथ वो सारे खुदा का कलाम सुना रहे हैं। तो जब वो खुदा का कलाम सुना रहे हैं तो वे कुछ लोग कह रहे हैं कि ताज़ा मै के नशे में हैं। तो पतरस इसके जवाब में खड़ा होता, वो कहता है इसराइली मर्दो, ये नशे में नहीं, अभी तो तीसरी घड़ी है, 9 बजे का टाइम है, ये किस तरह नशे में हो सकते हैं? रोजा अफ्तारी का भी वक्त नहीं है ये। तो वो कहता है कि आज वो बात पूरी हुई है जो योएल नबी की बात कही गई थी कि आखिरी दिनों में क्या होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे और जवान रुआ देखेंगे, बूढ़ों को ख्वाब आएंगे, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वही निजात पाएगा। ये पतरस जब ये अल्फाज कहे तो लोग जो है खुदा ने उनके दिल को छेदा। तो पतरस रसूल कहता है कि मेरे भाइयों सुनो, तुमने यीशु नासरी को मसलूब कर डाला, तुम उसके कातिल बन बैठे हो। उनके दिल लिखा पसीज गए। वो पतरस से कहते हैं हमें बताओ कि हम क्या करें। पतरस कहता है बस तुम में से हर एक अपने ग्रहों से तौबा करे। क्या करे? तौबा करनी चाहिए, तौबा करे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के पहला है क्या बात पतरस ने कही थी, बस तुम हमें से हर एक अपने ग्रहों के लिए क्या करे? बपतिस्मा, ईमान लाई यीशु मसीह पर। दूसरा है कि बपतिस्मा पाए। तो फिर पतरस कहता है कि ये वादा तुमसे, कहता है बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। सुने गौर से, ये वादा तुमसे, तुम्हारे बच्चों के बच्चों से है, बल्कि दूर से आने वाली नस्लों के लिए है। कैसे वादा है ये? तुम्हारे बोलो सारे, तुम्हारे बच्चों से है। कहने का बच्चे ना दो ये बपतिस्मा। यहाँ पेंटिकोस्ट के दिन पहले दिन ही पतरस रसूल कहता है कि ये वादा किनसे है? बच्चों से। किनसे है वादा? बच्चों से। और तुम्हारे बच्चों के बच्चों से दूर से आने वाली नस्लों के लिए है, जो बल नहीं गए उनके लिए है बपतिस्मा। तो इसलिए कैथोलिक चर्च में ये बच्चों को दिया जाता है। आजकल तो कुछ फर्क पड़ गया है। नहीं तो जब हम 10 को कोड़ा में थे तो वहाँ बच्चा जब पैदा होता है ना, माँ
इस तरह एक नई कलीसिया भी बच्चों को इजाजत नहीं दी कि अपने बच्चों को दूध भी पिलाएं, पहले जाकर बपतिस्मा दिलाते थे। लेकिन आज हमने पेंतीकोस्त के बारे में बातचीत करनी है तो रूह कुदस के बारे में। रूह कुदस है आज भी मेरे जो हमारी जिंदगियों को बदल देता है। पुराने नामे में इसका बहुत जिक्र है पाक रूह का, नया नामे में भी। पुराने नामे में हजरत मूसा था, उस पर खुदा उनका पाक रूह था, तो उसका जो ससुर है उसका क्या नाम था बिला क्यों जी? मूसा के बाप का नाम, ससुर का नाम, हाँ यत्रो, शाबाश यत्रो था। वो उसके पास है, उसने उसे सलाह दी कि तू अकेला इनके फैसले कर दे, तो अपने मुआवन चुन। तो हजरत मूसा ने 70 मुआवन चुने, 70 लोगों मुंतखब किया जो कौम में बुजुर्ग थे। फिर खुदा ने लिखा है कि रूह जो है वो ट्रांसफर होती है, एक से दूसरे में दाखिल हो जाती है। रूह क्या होती है? ट्रांसफर होती है, यानी एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। हजरत मूसा पर खुदा का रूह था, उसने अपने हाथ उठाकर उन 70 बुजुर्गों की दुआ की तो वो भी नबूवत करने लगे। खुदा का पाक रूह मूसा से और 70 बुजुर्गों के मुंतकिल हो गया। इसी तरह एक और वाक़या बड़ा मशहूर पुराने ज़माने में इलियास नबी का। इलियास नबी जब उसका शागिर्द है अलीशा जब उठाया जाने वाला था तो उसे कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं? उसने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, ना दौलत मांगी है, ना कोई और चीज मांगी है, किसी ने सूट चाहिए, बल्कि उसने कहा है, अलीशा नबी ने कहा कि तेरी रूह में से मेरे लिए क्या मिले? दुगना हिस्सा मिल जाए। कितना हिस्सा मिले? दुगना हिस्सा मिले। तो उसको ऐसा ही हुआ। और इलियास नबी ने कहा था अगर तू मुझे आसमान पर जाते देख ले तो रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। ऐसा ही हुआ था। उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है, इलियास नबी कहता है कि मैंने फलां जगह भी जाना, फलां जगह भी जाना, लेकिन उसके साथ साथ चलता है। तो जब आसमान पर उठाया गया इलियास नबी, उसकी चादर गिर गई थी, वो उसने पकड़ ली है। चादर से गिरने से ये मुराद है कि खुदा का रूह उस पर भी नाज़िल हो गया। इस तरह नए नामे में भी हज़रत सदीक़ा मरियम पर रूह कुदस नाज़िल था। किस पर? मुक़द्दसा मरियम पर रूह कुदस नाज़िल था। जब वो अपनी खाला के पास जाती है, अलीशबा के पास, ज़करिया के घर में, जब वो दोनों की मुलाकात होती है, पहले अलीशबा पर रूह कुदस नाज़िल नहीं है। जब ही अलीशबा की और मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात होती है तो लिखा है कि बच्चा खुशी के मारे उसके पेट में उछल पड़ा। तो वो गीत गाती है, मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई है। तो रूह कुदस से वो भर जाती है अलीशबा। मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात से वो रूह कुदस से भर गई और वो गीत गाने लगी। मुबारक है वो जो औरतों में से मुबारक है, तेरे पेट का फल भी मुबारक है। वो खुशी से गीत गाती है। इस तरह से जो लोग रूह में रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, वो दूसरों से जब मुलाकात करते हैं तो वो भी रूह कुदस से मामूर हो जाते हैं। इसी तरह रसूलों के बाद मोमिनीन में गैर कौमों पर भी रूह कुदस नाज़िल हुआ है। अगर हम पेंतीकोस्त को देखें तो उस वक्त 3,000 लोगों ने ईमान लाया और बपतिस्मा पाया। रसूलों के चौथे बाब में पढ़ते हैं कि जब वो लोग ईमान लाते हैं तो दूसरे दिन भी लोग ईमान लाए तो लोगों की तादाद 5,000 हो गई। दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर हम रसूलों के 5वें बाब में पढ़ें, हननिया और सफीरा का बड़ा जिक्र है। जब वो लोग रसूलों के पांव पर रखते थे, अपने जाकर जमीनें बेच पर उनके पास लाते थे, तो उन्होंने भी जमीन बेची, आधी कीमत घर में रख ली, आधी जाकर पतरस रसूल के पांव पर रख दी। तो पतरस चूंकि रूह कुदस से मामूर था, उसने उससे पूछा है हननिया क्या जमीन इतने को बिकी है? वो उसने झूठ बोला, कहने लगा हाँ इतने को बिकी है। आधी कीमत उसने घर में रख ली, आधी रसूलों को दे दी।
اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی سفیرہ آتی ہے، پطرس اس سے بھی پوچھتا ہے کہ سفیرہ اتنی کو زمین بکی؟ وہ بھی کہنے لگی کہ ہاں اتنے ہی کو زمین بکی ہے۔ تو پطرس کہنے لگا کہ دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے کے لیے لے گئے ہیں، تجھے بھی ابھی لے جائیں۔ وہ لوگ جو مکر و فریب سے بھرے ہوتے ہیں، دوسروں کو فریب دینا جانتے ہیں، لیکن خدا کو یا پاک روح کو فریب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس طرح غیر قوموں میں روح القدس پایا ہے، جیسے کورنیلیس نے، وہ بڑا دعا کو ہے، دعا کرنے والا ہے، حالانکہ غیر قوم سے ہے، رومی صوبے دار ہے، غیر قوم کا ہے، لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے اس کی یاد جو ہے وہ خدا کے حضور ہوتی ہے۔ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کہ تو پطرس کو بلوا، اس سے کلام سن، کیونکہ تیری دعائیں اور خیرات خدا کے حضور پہنچی ہیں۔ وہ یہ کام کا دعا بھی بہت کرتا تھا اور خیرات کیا کرتا تھا لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور خیرات جو کرتا ہے وہ خدا کے حضور پہنچی ہیں، بس وہ پطرس کو بلوا اور اس سے خدا کا کلام سن۔ اس نے اپنے 3 سپاہی بھیجے اس کو بلانے کے لیے، تو 2 دن کا سفر ہے، 2 دن سفر کر کے جاتے ہیں، پھر پطرس کو جا کر ملتے ہیں۔ اس پر بھی خدا کا روح نازل ہوتا ہے، اسے بتایا گیا کہ 3 آدمی تیرے پاس آ رہے ہیں، ان کے پاس بے کھٹکے بغیر کسی بہانہ کیے تو ان کے ساتھ چلا جا۔ پھر ان کے پاس جاتا ہے، پہلے ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ پطرس روانہ ہو جاتا ہے واپس کورنیلیس کے پاس آتا ہے۔ تو جب کورنیلیس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس نے کچھ اپنے مہمان، کچھ عزیز و اقارب اس نے بلائے ہوئے تھے، اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو وہ اس کے پاؤں میں گرتا ہے، پطرس اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو پھر پطرس کہا تو نے مجھے کس بات کے لیے بتایا ہے؟ تو وہ ان کے سامنے خدا کا کلام سناتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ گھر میں جتنے بھی اس کے غیر قوموں کے افراد بلائے ہوئے ہیں ان سب پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ اس نے 12 افراد اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس کے رشتے دار تھے، ان سب پر جو غیر قوم پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہے، کیونکہ روح القدس سب قوموں کے لیے ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، کسی بھی قوم سے ہو خدا سے ڈرتا ہو اور راست بازی کے کام کرتا ہو، وہ خدا کو پسند ہے۔ ایک اور رسولوں کے مالات میں ذکر ہے، یسوع کا وہ بھی شاگرد ہے فیلبوس، اور غیر قوم ایک ملکہ آتی ہے، ملکہ کنداکے کی، پھر اس کا ایک خواجہ سرا آتا ہے۔ خواجہ سرا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ خسرے کو، پطرس کو۔ وہ خسرا ہے، وہ بھی غیر قوم میں سے ہے، وہ بھی خدا کا کلام سننے کے لیے آتا ہے۔ وہ خدا کا کلام سن کر واپس جا رہا ہے، واپس وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہے اور شاہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے۔ کس کا پڑھ رہا ہے؟ جو خدا کی نجات ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہم خسروں کو جو مخنث ہیں کو دھتکارتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے پاک روح نے اس کو اٹھایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، خدا پاک روح مداخلت کر رہے انسان کی نجات کے لیے۔ پاک روح نے فیلبوس شاگرد کو اٹھایا اور اس کے رتھ کے نزدیک جا کر اتار دیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے خواجہ سرا سے، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھ سکتا جب تک کوئی میرا ہاتھی نہ ہو، مجھے ہدایت کرنے والا نہ ہو، اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا فیلبوس نے، تو آگے پھر پانی آتا ہے، وہاں اس کو بپتسمہ دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب مجھے بپتسمہ دینے سے کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ تو وہ کہتا ہے فیلبوس بس تم ایمان لاؤ اور بپتسمہ پالو۔ ایمان لانے سے اس نے ایمان لایا اور پانی میں اترے، وہاں بپتسمہ لیا۔ دوسرا ہے جو تو ہم برا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ پھر اپنے ملک میں جاتا ہے، وہاں جا کر وہ بشپ بنتا ہے جس نے اسے
سارے علاقے کو مسیحی کر دیا ہے. تو خدا نے خسرو کو بھی استعمال کیا اپنے جلال کے لیے, مخنث کو بھی. تو بڑے لوگ اس کے وسیلے سے مسیح کے پاس آئے ہیں. خدا اپنے جلال کے لیے غیر قوموں کو بھی استعمال کرتا ہے. پھر پالوس رسول, اگر ہم رسولوں کے اعمال پڑھیں 16 باب وہاں لکھا ہے, پالوس اور سیلاس منادی کے لیے پمفولیا میں گئے ہوئے ہیں. تو وہاں ایک لونڈی ملتی ہے. لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ غلام ہوتے ہیں جو پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. ایسے غلام ہوتے ہیں, لونڈی ہوتے ہیں, یہ خریدے جاتے ہیں. تو بڑے لوگ جو تھے وہ خریدتے تھے ان سے کام لینے کے لیے. تو وہ جو لونڈی راستے میں ملتی ہے, کنیز ملتی ہے اسے, وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے, اس میں غیب دانی کی روح ہے. وہ کہہ رہی ہے, رسولوں کی بشارت دے رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ کس کے بندے ہیں؟ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. کس کی راہ بتاتے ہیں؟ کسی نے اس پر میں پیغام دوں گا, خدا نے زندہ رکھا تو نجات کی راہ. اور بھی بہت سی راہیں جو ہم نے منتخب کی ہوئی ہیں, آپ ایک نظر پہ چل رہے ہیں. تو یہ بدرو کہہ رہی ہے جو اس عورت میں ہے, اور رسولوں کے بارے میں کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, یہ تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. کس کی راہ بتاتے ہیں؟ نجات کی راہ بتاتے ہیں. تو جب ان کے مالکوں نے دیکھا کہ بدرو اس نورانی سمر سے نکل گئی ہے, انہوں نے حکومت کے ساتھ جوڑ توڑ کیا, ان کو اندر قید خانے میں ڈال دیا. لیکن دیکھیں خدا کے بندے جب جیل میں جاتے ہیں, جیل کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے. آدھی رات کا وقت ہے, ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے کاٹ میں ان کو رکھا گیا ہے. کاٹ میں ٹھوکے گئے ان کے پیر بھی, کتنی درد ہوتی ہوگی ان کو. آدھی رات کا وقت وہ دعا کر رہے ہیں. تو ایک بڑا زلزلہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ خدا نے جیل کی چھت کو نہیں گرنے دیا, بلکہ بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کیا بنیادوں ہل گئی ہیں؟ جو جتنے مجرم ہیں اندر, سب کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. جو بڑے بڑے پھاٹے کا جیل کے وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں, سب قیدی آزاد ہو گئے. تو پالوس وہاں خدا کا کلام سنا رہا ہے لوگوں کو. تو فلپس دروگا ہے, خدا نے اس کو دل کو کھولا. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. پالوس اسے کہتا ہے کہ بس تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. کیا کہتا ہے پالوس اسے؟ بس تو ایمان لا. سب بولے بس تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. بس تو ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. پہلے وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا ہے, وہ کو یسوع مسیح کا پتہ ہی نہیں ہے. بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا ہے. جب پالوس نے خدا کا کلام سنایا تو صرف اس کو نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے. وہ ایمان لاتا ہے. پھر پالوس کو اور سیلاس کو وہ اپنے گھر لے کر ان کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے. جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بپتسمہ دیتا پورے گھرانے کو. تو رسولوں کے اعمال میں جتنے بھی بپتسمے ذہن لوگوں کے گھروں میں ہوئے ہیں, اس گھرانے کو بھی ان کے گھر میں بپتسمہ دیا گیا ہے, وہ ایمان لائے ہیں. تو اسی طرح میرے جو 35 کے دن رسولوں کو, غیر قوموں کو جنہوں نے خدا کا کلام سنا ہے, سب نے ایمان لایا ہے. یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے. اور ایمان لکھا ہے رسولوں کے بارے میں, ایمان لانے والی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے. آج بھی میرے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ بھی, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے کہ ہر روز خدا کا کلام پڑھیں. ایک بار پڑھیں, 2 پڑھیں, جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. تو خدا آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا سبب بن گیا. آپ کو برکت ملے گی خدا کے کلام کے پڑھنے سے. دعا کرنے سے آپ گھر میں دعا کریں گے, گھر میں برکت آ جائے گی. تو آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے خاندانوں کو جو بائبل صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں,
दुआएं करके अपने घरों में खुदा उनको बरकत देता है, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हमारे मांगने से पहले ही जानता है। तो आइए अभी हम यीशु पर ईमान लाएं। पाक रूह जो उसका भेजा हुआ है, तीसरा शख्स है। खुदा में कितने शख्स हैं? कौन कौन से? और शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बच्चे सियाने हो गए। ये 3 शख्स हैं। तो 35 के दिन रूह खुदा जो तीसरा कानून है वो उतरा है लोगों में। तो पुराने नामे में ये था कि जब रूह कुदस आता था लोगों के पास, फिर वापस चला जाता है। तो 35 के दिन जब रूह कुदस रसूलों पर नाज़िल हुआ है, फिर रूह पाक वापस नहीं गया। अभी वो कलीसियों में मोमिनीन के दरमियान चलता फिरता है, नजर आता उनकी जिंदगी में मोमिनीन की। बशर्ते कि ईमानदार जो लोग हैं वो दुआ करने वाले बन जाएं। हमें इसकी अशद ज़रूरत है। मसीह हमारे गुलाम के वसीले से आमीन। अभी मेरे बारे में सब खड़े हो जाए तो दुआ करेंगे। नारा बन के सब आंखें बंद करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए शादमान दिल अता कर। आज के कलाम मुक़द्दस के ऊपर मैं शुक्र अदा कर जो तूने हमारे सामने रखा। तेरा कलाम जिंदा और मौसर है, जो 2 धारी तलवार से भी तेज तर है, जो रग रग बंद रूह और कूदे में से होकर गुजर जाता है। हाजिर हाजिर जमात के लिए मेहनत करता हूँ कि अपने पाक रूह को कसरत से हम पर नज़र कर। हमारी ज़बान होठों को छू में पाक और पवित्र कर है खुदा। उनके पाक रूह का मसर तेरी कुदरत तेरा जोर हो इन बेटों बेटियों पर बुजुर्गों पर ठहर जाए खुदा। जो बीमार है खुदा अपने पाक रूह से को छू है खुदा, ताकि कोई यहाँ बीमार ना रहे बल्कि सब शिफा याफ्ता हो जाए खुदा। तेरी बरकत इन पर ठहर जाए। उन बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों की दुआ करो सब शिफा पाए खुदा। तेरी बरकत इन पर ठहर दे। तू हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया, तूने हमारी बदकारियां अपनी पर उठा ली। हमने तुझे खुदा की तरफ से मारा, कूटा, सताया, मतरूक समझा, लेकर तू मर्द गमनाक है। हमारे गम तुझ पर ला दिए गए, तो हमारी बीमारियों का आशना हुआ। तेरे कुड़े खाने से हमने शिफा पाई। सुआ जलाली खुदावन इन घर घरानों को खुदावन तो बड़ी बरकत दे। तेरे पाक रूह का मसा, तेरी कुदरत, तेरा जोर ठहर जाए। ऐ खुदावंद इस हैकल को खुदावंद अपने पाक रूह से भर, ताकि जो कोई ऐ खुदावंद यहाँ दुआ करे तो उनकी सुन है खुदावंद। तो आज भी दुआओं का जवाब देने वाला है। ऐ खुदावंद तो आयल के लिए दुआ कर दो कि खुदावंद अपने रूह से भर रहे खुदावंद, ताकि तेरे नाम को जला दे सकें। इन बेटों बेटियों को जो यहाँ मौजूद है इनको भी बड़ी बरकत दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, ताकि इन बेटियों बेटों के वसीले से इनके घराने निजात पाएं। बुजुर्गों के लिए दुआ कर दोगे खुदावन ने भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन तेरा रूह इनके दरमियान काम करे, तेरी बरकत इन पर ठहर जाए। प्रभु यीशु तेरी जय हो। ये सब कुछ हम मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। शुक्रिया मास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम। ये हमारी ईद पेंतीकोस्त की तैयारी के अयाम हैं। उसी सिलसिला में आज का पैगाम हमने सुना और आइंदा हफ्ते भी हम देखेंगे। इसी से रिलेटेड रूह कुदस के फलों के मुताबिक या उससे रिलेटेड हम खुदा के कलाम से सुनेंगे। अब वक्त है कि हम अपने हदीये और नजराने खुदा के हजूर में पेश करें और क्वायर के साथ मिलकर हदीये का गीत गाएंगे और मिल के दुआ करेंगे।
کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی عرض منتیں اور گواہیاں جو ہماری زندگی میں خدا کام کرتا ہے، جو کسی کی زندگی میں کام کیا ہے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا طارق جاوید دل کو کہ وہ آئیں ہماری رہنمائی کریں۔ اگر کسی کی زندگی میں خداوند نے کام کیا ہے، کوئی اپنے گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ اس وقت سامنے آئے اور گواہی دے سکتا ہے۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ اور 1 مہینہ ہو گیا میرے کولسٹرول بھی بڑا ہوا تھا، میری ٹانگوں میں بھی بہت درد تھی، میں جب چرچ آتی تھی بہت مشکل ہوتی تھی آنے میں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کافی ٹھیک ہے، اور تھوڑا بہت جو تکلیف ہے میرا ایمان ہے کہ بالکل آرام آ جائے گا۔ آئے ہم خدا کے حضور بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ خدا پیارا خداوند، ان تمام ناموں کو جو ہم پڑھیں گے، نبیل پرویز، سمیرہ ملک، نوید گل، اینیس، فرزانہ عمران، مریم عرفان، ناصرہ بابر، مینوئل برکت، رامس عامر، شہناز، ثنا، سمیرہ مائیکل، سمیر مائیکل، بابر سلامت، وائلٹ، سلومی یونس، یونس جیمز، سمیرہ شہزاد، ان سب کے لیے ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم ساجد راجہ اور عذرا ساجد کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جو اسلام آباد میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند انہیں کرونا جیسی بیماری سے رہائی بخشے، انہیں شفا بخشے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم رشتوں کے لیے خداوند سے دعا کریں گے۔ رائلہ اشرف کے لیے، شبانہ ایمینول، تیتس ایمینول، شازیہ ڈیوڈ، بشرا جیمز، ماسٹر صادق اینڈ فیملی، ایلما جان، عمر اینڈ سمر، ان سب کے لیے ہم دعا کریں کہ خداوند رشتوں میں تمام بندشوں کو توڑ ڈالے۔ اب پیارا خداوند ان فیملیز کے لیے، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اچھے رشتے فراہم کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم عمران مسیح کے لیے دعا کریں جنہیں خداوند نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خداوند ان کی روح کو ابدی آرام بخشے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کومل جمشید، ساجدہ مٹو، عظمیٰ کامران، سمیرہ رونی، آسکر اینڈ نعیم، تھامس اینڈ مسز تھامس، کیرن اور اظہر جو کہ لاہور سے ہیں، لوریٹا ڈسمنڈ، سمر ہیریج، ان سب کے لیے ہم خداوند کے حضور منت کرتے ہیں کہ خداوند ان بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم شکر گزاری کے لیے صفیہ بوٹا، مشتاق عنایت صبا، مشتاق طارق جاوید گل کے لیے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری شکر گزاری کو قبول کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہم اپنے اس پریئر سیشن کے آخری سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا ناصر مشتاق کو کہ وہ آئیں اور لاسٹ سیشن میں ہماری رہنمائی کریں۔
आइए मेरे अजीज़ों, सब अपने कदमों पे खड़े होते हैं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं। हम सब ने कलाम के जरिए खुदा की रूह को महसूस किया। आज का कलाम रूहुल कुदुस के नज़ूल का कलाम, यकीनन रूहुल कुदुस ने हम सब को छुआ है, और अगर जिन्हें रूहुल कुदुस ने नहीं छुआ वो ईमान रखें। अब इस हिस्से में जरूर खुदा का रूह उन्हें छुएगा। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम गीत गाते हैं रूह की बारिश।
खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया। तो खुदावंद के शागिर्द जो कि परेशान, डरे हुए, सहमे हुए, खौफज़दा और अपने आप को बंद किए हुए, इतना डर, इतना खौफ, कि वो समझते थे कि जिस तरह हमारे उस्ताद को, खुदावंद यीशु मसीह को रोमी हुकूमत ने मसलूब कर दिया, शायद उन शागिर्दों को भी वो कत्ल कर दे। इतना खौफ उनके अंदर भरा हुआ था कि खुदावंद को बार बार उन्हें सलामती देने के लिए आना पड़ा। मेरे अजीजों, आज उस बाला खाना में जब रूहुल कुदुस का नज़ूल हुआ, जब रूहुल कुदुस आग की सूरत में, हवा की सूरत में हर एक पर आके ठहरा, तो उन्हें जुर्रत मिली, उन्हें ताकत मिली। जो कि बुज़दिल थे वो ताकतवर बन गए, जो कि खौफ की हालत में थे उनका सारा खौफ जाता रहा, उनके दुख खुशियों में तब्दील हो गए और वो बाहर निकले। और यूहन्ना और पतरस जब बाहर निकले तो उन्हें हैकल के दरवाजे पर एक शख्स जो कि पताशी तौर पर माजूर था उन्हें दिखा, और उस शख्स ने उससे कहा कि मुझे कुछ दे। तो पतरस ने उस पर नजर की और वो समझा कि शायद ये दोनों पतरस और यूहन्ना मुझे कुछ देंगे। तो मेरे अजीजों, पतरस के अल्फाज, पतरस से उसने कहा कि ना तो मेरे पास सोना है और ना चांदी, मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे शिफा देता हूँ। उठकर चल फिर मेरे अजीजों, आज हमारे दरमियान रूह कुदुस मौजूद है, हमारे अंदर रूह कुदुस है, सारी ताकत हमें रूह कुदुस से मिली है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो खुदा बाप और बेटे
किसी को बे औलाद ना छोड़ूंगा। मैं तमाम पूरे जमीन इंसानों को औलाद का वारिस बनाऊंगा। आज के दिन उन बेटियों के लिए भी तुझसे मिन्नत की दरख्वास्त करते हैं जिनके रिश्ते नहीं सामने आते। ऐ बाप आसमानी, तुम जोड़ों को सामने ला, क्योंकि मेरे बाप ने नर और नारी पैदा किए हुए हैं। अब बाप आसमानी, तुम बेटियों के लिए अच्छे साथियों का इंतखाब करना, ताकि माँ बाप जो परेशान हाल है वो प्यारे खुदावन सुबह जब बेदार हो जाते तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हो जाए। खास तौर पर उन खानदानों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं जिन खानदानों में नाचाकियाँ, बदसलूकियाँ, बदइत्तफाकियाँ यीशु जी। प्यारे खुदावन इन घरानों को छू यीशु नाम से, उनके तमाम शैतानी कुव्वत की तासीरों को यीशु नाम से खत्म हो जा, ताकि इनके घरानों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो और ये घराने प्यारे खुदा आपस में प्यार मोहब्बत और सलूक से रहे और यीशु जी की जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। आज के दिन जितनी जाने आमाल छूट हुई है, मैं नहीं जानती बल्कि तू जानता है कि इनकी क्या क्या जरूरियात है। ऐ बाप आसमानी, उनकी जरूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा करना, ताकि आज के दिन ये तेरे दर से कोई जान खाली हाथ ना लौटे, बल्कि झोलियां बन बन कर तेरी सुबह से निकले। और खास तौर पर उन बेटों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं जो प्यारे खुदा नशे की लानत में फंसे और फंसे हुए हैं। ऐ बाप आसमानी, दुआ पर उन पर अपने पाप की आग भड़का दे, ताकि इनके बदनों से ये शैतानी कुव्वत छाती रहे, ताकि ये माँ बाप जो परेशान हाल है, ये परेशानियों से आजाद होकर और ये बेटे इन प्यारे खुदा नशे की लानत से आजाद हो जाए। क्योंकि मेरे बाप ने फरमाया है, कोई नशाबाज मेरी बादशाही में दाखिल ना होगा। प्यारे खुदा कुल कायनात के लिए तुझसे मिन्नत की दरख्वास्त करती हूँ, ऐ रहम के खुदा, तुझ पर रहम का। ऐ बाप आसमानी, तुझ पर तरस का। ऐ बाप आसमानी, इन्हें शैतानी चुगलों से आजाद कर, ताकि ये लोग इन शैतानी बिंदों से आजाद होकर तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि तुरंत जीसस खुदा खुदा तू रहीम और कदूस आसमानी बाप, खुदा खुदा, जब हम उससे दुआएं इल्तिजाएं मांगते हैं, यकीन है खुदा खुदा उन्हें सुनता और कबूल करता है। खुदा खुदा खास आज तुझसे दुआ इल्तिजा करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना जैसी वबा में मुब्तला हैं, जो कोविड के पेशेंट हैं और मुश्किलात में खुदावन अपने लहू को उंडेल खुदा खुदा अपने लहू से तमाम उन लोगों को पाक और साफ रखना, ताकि वबा जाती है। और हम सब जो है खुदा खुदा यहाँ मौजूद हैं और हमारे खानदानों के साथ भी, और खुदा उन्हें भी इस वबा और इस मोहल्ले की बीमारी से बचा कर। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम दुआए रब्बानी और फरिश्ते का सलाम पढ़ें, मैं चाहूँगा अपने तमाम मेंबर से कि वो सामने आएं और हम ख़ास तौर पर कोविड के लिए, उन तमाम मरीज़ों के लिए जो कोविड में मुब्तला हैं, एक गीत गा कर खुदा उनसे दुआ करेंगे कि खुदा इस पूरी दुनिया को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को
इस वबा और इस बीमारी से निजात दे और हमारी बख्शिश करे। मैं वसीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए। हमारे परमेश्वर को गौर करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो सदा आसमान में है, तेरा नाम पूजित हो, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे,
आज हमारे वर्ष है तू हमारे कसम वर्ष Not ever you put the sun from the south, grow in one day. And the summary of God, how the world was the water, how the body was the water. बाप और बेटे और कुदस का हो। आप हमारे पर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह, इशराक, इत्मीनान, तसल्ली हम सबों के साथ रहे। आमीन।